Hello everyone, welcome to GH Smart Classes, perfect point to study. How are you all? Hope you all are fine. Stay home, stay safe. So let's start the today class. Chapter Financial Statements of Not-for-Profit Organizations में हम आज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बनाती, उसकी जगह वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, जिससे वो सरप्लस और डेफिसिट को पता करती हैं। जो इनकम्स और गेंस जो होते हैं वो हम क्रेडिट साइड पर डालते हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेज जो होते हैं वो हम डेबिट साइड पर डालते हैं। Next is income and expenditure account is prepared at the end of accounting period, matching revenue receipts income with the revenue expenditure expenses to determine surplus or deficit. डोनेशन फॉर जनरल पर्पस पे जो होगा वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे, जो स्पेसिफिक होगा उसको हम नहीं डालेंगे। उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर लैंड खरीदिए तो वो हमारा एसेट है, तो उसको हम बैलेंस शीट में डालेंगे एसेट साइड पे। नॉन कैश एक्सपेंसेस एज ए डेप्रिसिएशन आर अकाउंटेड। रिवेन्यू इनकम जो उसके बाद जो भी है, वेदर रिसीव्ड और नॉट, पेड और नॉट, वो हम सब इसमें लिखते हैं। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट नोट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखते, क्योंकि हमें नहीं इसमें सरप्लस और डेफिसिट निकालना है, तो इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखते। जो चीज़ जिस ईयर की होगी हम सिर्फ उसी ईयर का लिखेंगे, बाकी जो नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर का होगा वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करेंगे। जैसे कि हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में सबका लिखते थे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक पर्टिकुलर ईयर के बारे में ही लिखेंगे। अगर जैसे हम 2020 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे तो 2019 का हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2020 का ही लिखेंगे। नेक्स्ट इज capital expenditure. Capital expenditure is an expenditure the benefit of which is not enduring nature, that is its benefit extends beyond one accounting period. For example, purchase of asset, sale land and building for the further of organizations activities is a capital expenditure. Revenue expenditure. Revenue expenditure is that expenditure the benefit of which expires within the accounting period. In the context of not-for-profit organization, revenue expenditure means expenditure incurred for social or charitable activities for which the capital expenditure. Examples are salaries to staff, rent, educational grants, honorariums paid, sports material use, insurance, etc. These are the examples of revenue expenditure. Next is revenue receipts. Revenue receipts are the receipts which are received as an income by the organization. Examples: entrance fees, subscription for the year from membership fee, members, general donations, rent received, sale of old newspaper, etc. ये हमारे सारे revenue receipts में आते हैं. Features of income and expenditure account. First is nature. It is a nominal account, hence expenses and losses for the year are transferred to debit, while incomes and gains for the year are transferred to credit of the income and expenditure account. Basis of accounting: income and expenses and losses of revenue nature are shown in the account on accrual basis of accounting. Income and expenditure account जो बनता है वो accrual basis पे बनता है. On the other hand, receipts and payments account जो था हमारा वो हमारा cash basis पे बनता था. Accounting period: those incomes, expenses and losses which relate to the current accounting period, whether paid or not, are shown in the account. वो चीज़ें, वो इनकम्स और वो एक्सपेंसेस और वो लॉसेज जो जो पर्टिकुलर जिस जिस ईयर का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, अगर उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, चाहे वो पेड हो या ना हो, लेकिन हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस: इट डज नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस, इट्स बैलेंस एट द एंड इज either surplus or deficit which is transferred to capital fund in the balance sheet. Next is adjustment. This account is prepared on accrual basis of accounting, and thus all adjustments relating to prepaid or outstanding expenses and incomes, provisions for depreciation or doubtful debts are made. So ये था. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है? डेबिट साइड पे हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर जितने हमारे खर्चे होते हैं, और इन क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं हमारे इनकम जितने भी हमें गेन्स होते हैं. एक्सपेंडिचर साइड्स पे लिखेंगे टू सैलरीज एट आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग. आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम देखेंगे अगर जैसे 2020 का हम बना रहे हैं, 2020 के एंड में हमें किसी ने हमारा जो पैसे थे जो हमें मिलने थे वो हमें मिल गए, तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया. लेकिन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग यानी कि साल शुरू हुआ लेकिन साल शुरू होते ही हमें पैसे मिल गए, तो वो हमारे आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग हो जाएगा. उसके बाद हम टू रेंट टू इंश्योरेंस प्रीमियम
प्रीपेड को लेस करके ऑडिट फीस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, हॉनोरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, ये सारा हम स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, उसके बाद सरप्लस निकलता है हमारा, एक्सेस ओवर इनकम और ओवर एक्सपेंडिचर, ये सारे हम एक्सपेंडिचर साइड्स में डालते हैं। नेक्स्ट इज़ इनकम। इनकम्स में हम सब्सक्रिप्शन जो भी हमें रिसीव होता है, गेन होता है, हम वो इनकम में डालते हैं। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस इन द बिगनिंग, लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, लेस एडवांस एट द एंड, ये सब हम इनकम्स में डालते हैं। बाय एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, जनरल डोनेशंस, लीगेसीज, डोनेशन जो जनरल होंगे हम सिर्फ वही डालेंगे, स्पेसिफिक को नहीं डालेंगे। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेंट, बाय गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सन्ड्री रिसिप्ट्स, बाय डेफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ये सब हम जितना भी है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ये सब हम इनकम साइड्स में डालते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट करके, मैं आपका नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, कल हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.